Good afternoon, dear students. Today we will discuss some numerical on the thermal stress. In last lecture, I have discussed about the thermal stress and how it is determined. It is determined in two cases. Case first मैंने बताया था कि if there is a bar, it is rigidly fixed. Both ends are rigid. In that case, if the length of the bar is L, the area of the cross section is A, then how much thermal stress is developed? I have discussed the case number second, in which the ends of the bar are not rigid. So when the temperature of the bar is increasing, then there is a yielding of the end. Okay, so there is a amount of yielding takes place. In both cases, I have discussed. After that, I have discussed about the compound bar, about कंपाउंड बार. तो कंपाउंड बार मैंने बताया था कि if there is a one material, hollow tube of the one material, in which other material is rigidly fixed. For example, this is the steel and this is the gunmetal. Gunmetal. Then if the temperature delta T is increasing, then what is the stress developed inside the steel and how much the stress developed inside the gunmetal? So we will discuss these things theoretically and discuss the one numerical over the thermal stress. In this lecture, I will discuss one numerical over the compound stress and second, some theory about the shrinking on wheel. Okay, so we will start the numerical. So a steel tube, this is the numerical, and this numerical is from compound bar. This is the hollow tube that has the diameter 35 millimeter and internal diameter 30 meter, and there's a gunmetal which has the 25 millimeter diameter, and both are rigidly fixed on the matting surface. Okay, rigidly fixed का मतलब ये है कि the both bar will move same elongation, एक साथ ही मूव करेंगे. तो देखते हैं स्टील ट्यूब, ए स्टील ट्यूब ऑफ 35 millimeter outer diameter and 30 millimeter inner diameter encloses a gunmetal rod of 25 millimeter diameter and is rigidly joined at each end. If at a temperature of 40 degrees centigrade, there is no longitudinal stress, determine the stress developed with the rod and tube when the temperature of the assembly is raised to 25 degrees centigrade. Okay, so how much temperature is raised? Delta T is equal to T2 minus T1 and it is equal to 240 minus 40 is equal to 200 degrees centigrade. So this assembly temperature will be raised by 200 degrees centigrade. Okay, so when the temperature is increased to 100 degrees centigrade, then how much stress is developed inside the steel and how much is developed inside the gunmetal. Okay, डेटा आपको क्या क्या दिया है? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील अल्फा एस आपको दिया है. कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गन मेटल दिया है, अल्फा जी दिया है. यंग मॉडुलस ऑफ स्टील ई एस दिया है. यंग मॉडुलस ऑफ गन मेटल दिया है ई जी. एंड द टोटल लेंथ ऑफ द असेंबली एल इज इक्वल टू दिए 1 मीटर. ओके, और इसने ये भी पूछा है also find the increase in length if the original length of the assembly is 1 मीटर. तो कैसे डिटरमाइन करेंगे हम? स्टेप बाय स्टेप चलते हैं.
स्टेप फर्स्ट, हमारा जो फर्स्ट स्टेप रहेगा, वेरी सिंपल, फाइंड आउट द क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बोथ मटेरियल। हमें ये पता करना है कि दोनों जो मटेरियल है इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है। तो स्टील हॉलो है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई 4 इंटू आउटर डायमीटर माइनस इनर डायमीटर का होल स्क्वायर। तो ए एस इज इक्वल टू पाई 4 इंटू 35 का होल स्क्वायर माइनस 30 का होल स्क्वायर। एरिया ऑफ द स्टील इज इक्वल टू 255.25 मिलीमीटर का होल स्क्वायर, ठीक है। और एरिया ऑफ द गन मेटल ए जी इज इक्वल टू पाई 4 इंटू डी स्क्वायर। तो पाई 4 इंटू 25 का होल स्क्वायर, एरिया ऑफ द गन मेटल हो गया हमारा 490.8738 millimeter square. Okay, now step second, use the equilibrium equation. So initially when the temperature is T, there is a T1 is equal to 40 degrees centigrade, there's no stress developed inside the material. But when the temperature is increasing, okay, when the temperature is increasing, the both material will move by different thermal expansion coefficient. Okay, so there is a force developed inside the material due to the increasing length. लेंथ बढ़ने से, एक्सपेंशन होने से उसके अंदर एक फोर्स डेवलप होगा। तो मैंने तो एज पर द इक्विलिब्रियम इक्वेशन द फोर्स डेवलप इन स्टील इज इक्वल टू फोर्स डेवलप इन गन मेटल। तो सिग्मा एस इंटू ए एस इज इक्वल टू सिग्मा जी इंटू ए जी, ठीक है। तो सिग्मा एस ए एस हमने रखा 255.25 सिग्मा जी इंटू 490.8738। तो यहाँ से सिग्मा एस हमारा जो आया दैट इज इक्वल टू 1.9231 सिग्मा जी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ओके, सेकंड इक्वेशन कहाँ से आएगी, पहले मैंने आपको बताया था इक्वेशन नंबर सेकंड, बिकॉज ऑफ देयर आर टू अननोन सिग्मा एस एंड सिग्मा जी। तो सेकंड इक्वेशन is the compatibility equation. So alpha g minus alpha s into increase in temperature delta T is equal to sigma s divided by es plus sigma g divided by eg. This is the second equation. Put all the values. So when we put all the values, तो आपका देखो अल्फा जी कितना है 18 इंटू 10⁻⁶ माइनस 11 इंटू 10⁻⁶, सॉरी into increase in temperature 200 degree centigrade is equal to sigma s divided by 205 into 10 to the power 3 plus sigma g divided by 91.5 into 10 to the power 3। फर्दर इसे सॉल्व करें तो 7 इंटू 200 इंटू 10 टू पावर 3 इधर ले गए इंटू 10 टू पावर -6 इज इक्वल टू सिग्मा एस डिवाइड बाई 205 प्लस सिग्मा जी डिवाइड बाई 91.5। अब हमने पहली इक्वेशन से सिग्मा एस इज इक्वल टू रख दिया उठा के 1.9231 सिग्मा जी, और इसे सॉल्व किया तो हमें हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी सिग्मा जी इक्वल टू आता है 68.9319 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और ये कौन सी स्ट्रेस डेवलप होगी इसमें,
कंप्रेसिव कंप्रेसिव क्यों होगी आपको पता है? बिकॉज ऑफ दैट इसका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ज़्यादा है स्टील से। तो मैंने पहले ही बताया था जिसका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ज़्यादा होगा उसके अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगी, जिसका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट कम होगा उसके अंदर कम स्ट्रेस वो टेंसाइल डेवलप होगी। तो सिग्मा एस इज इक्वल टू आप निकाल सकते हैं, सिग्मा जी की वैल्यू निकाल ली, सिग्मा एस इज इक्वल टू 1.9231 इंटू 68.9319। तो सिग्मा एस इज इक्वल टू आप क्या आ गया 132.56 मेगा पास्कल। ठीक है, ये आ गया। तो अब आपको टोटल इनकी लेंथ निकालनी है कितनी बड़ी। तो हम ये देखते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेस किसके अंदर डेवलप हुई, टेंसाइल स्ट्रेस स्टील के अंदर। स्टील के अंदर जो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हुई वो हुई सिग्मा एस। तो इलोंगेशन जो स्टील के अंदर टोटल लेंथ जो हुई इंक्रीज हुई वो किस वजह से हुई, डेल्टा एल ड्यू टू द टेम्परेचर, प्लस डेल्टा एल ड्यू टू सिग्मा एस। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या हो गया, एल अल्फा डेल्टा टी अल्फा स्टील प्लस एल सिग्मा एस डिवाइड बाई ई एस। डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा एस डेल्टा टी प्लस सिग्मा एस डिवाइड बाई ई एस। डेल्टा एल इज इक्वल टू 1000 अल्फा एस क्या है 11 इंटू 10⁻⁶ इंटू 200 प्लस 132.56 डिवाइड बाई 205 इंटू 10⁻3। डेल्टा एल इज इक्वल टू आएगा 2.8466 mm। ये इंक्रीज इन लेंथ हो गई। तो ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। तो बहुत सिंपल है इस तरह की न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, केवल आप दो इक्वेशन याद रखें और आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो पहली इक्वेशन तो जैसे आप याद रखेंगे तो सिंपल, कोई भी दो मटेरियल हो तो P1 इज मतलब फोर्स डेवलपमेंट फर्स्ट मटेरियल इज इक्वल टू फोर्स डेवलपमेंट सेकंड मटेरियल। अब सेकंड इक्वेशन रहेगी जिसका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ज्यादा है अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू सिग्मा 1 डिवाइड बाई E1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइड बाई E2। तो देयर आर टू इक्वेशन, सिग्मा 1 A1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 A2 फर्स्ट इक्वेशन, पहले मटेरियल दूसरे मटेरियल के लिए सेकंड इक्वेशन। सिग्मा 1 सिग्मा 2 फाइंड आउट करें और जो भी आपको कैलकुलेट करना आप कर लें। तो सिंपल है कंपाउंड बार का न्यूमेरिकल, अगर आता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। हम नेक्स्ट देते हैं श्रिंकिंग और व्हील। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस कॉन्सेप्ट का यूज कहाँ होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कोई मतलब जैसे कोई व्हील बनाना है और उसका यूज करना है कहीं लोड को सप्लाई करने में, तो उस कंडीशन में हम करते क्या हैं कि पूरा व्हील, अगर जो जैसे गांव में देखा होगा जो बैलगाड़ी होती है, बैलगाड़ी का जो व्हील बना हुआ होता है जिसके अंदर इस तरह से स्पोक्स लगी रहती हैं, और जो व्हील बना हुआ होता है वो किसका बना हुआ होता है, वुड का बना हुआ। ठीक है। अब वुड का बना होने से दो फायदे हैं, एक तो कॉस्ट बहुत कम कम है, लेस कॉस्ट, क्योंकि अवेलेबल है इजी तरीके से। दूसरा, इसका वेट कम है। ठीक है ना। अगर ये आयरन का बना हो तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, लेकिन फिर उसके साथ साथ इसमें इसका वेट ज़्यादा होगा। तो अब हम इसे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि सपोज करो इसका डायमीटर डी है, इससे कम डायमीटर की आयरन की एक स्ट्रिप लेते हैं जिसका डायमीटर डी हो, बट डी इज लेस देन डी। उसके ऊपर उसे फिक्स करना होता है। तो फिक्स करने के लिए क्या करते हैं, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं डेल्टा टी, तो ये एक्सपेंड हो जाती है। इसके ऊपर फिट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये इसके ऊपर एक हुप स्ट्रेस डेवलप करती है चारों तरफ से। क्या करती है, एक हुप स्ट्रेस डेवलप करती है, कंप्रेसिव लोड अप्लाई करती है सिग्मा। इसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। एक स्ट्रिप है जिसका स्मॉल डायमीटर डी है, और उसे किसी व्हील पर रेस चढ़ाना है जिसकी फिक्स करना है जिसका डायमीटर कैपिटल डी है।
ठीक है। तो अगर जो उसके ऊपर हमने फिक्स कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज करके फिक्स कर दिया, तो उसके अंदर हूप स्ट्रेस डेवलप सिग्मा सिग्मा डेवलप होगी, उसकी वैल्यू कितनी होगी ये डिटरमाइन करना है। तो हम देखें इनिशियल लेंथ ऑफ मेटल स्ट्रिप कितनी होगी, पाई इंटू डी इनिशियल लेंथ। अब ये डी डायमीटर के व्हील पर फिक्स कर दी गई, तो फाइनल लेंथ कितनी हो गई ऑफ मेटल स्ट्रिप इक्वल टू पाई इंटू कैपिटल डी। तो स्ट्रेन कितनी डेवलप हुई, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई इनिशियल, पाई इंटू डी माइनस पाई इंटू डी डिवाइड बाई पाई इंटू डी। ये हो गई स्ट्रेन डेवलप। ठीक है, जब स्ट्रेन ये डेवलप हो गई तो स्ट्रेस आपको निकालनी है, तो क्या होगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन इंटू ई। सिंपल, आप जो ह्यू पे स्ट्रेस डेवलप होगी वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ एक न्यूमेरिकल है, ए थिन टायर ऑफ स्टील इज टू बी माउंटेड ऑन रिजिड व्हील ऑफ डायमीटर, आपको कैपिटल डी दे दिया 1.2 मीटर। Determine the internal diameter of the tire if the hoop stress develop is limited to be, if the hoop stress is limited to be 120 megapascal, then determine the internal diameter of the tire. टायर का इंटरनल डायमीटर हमें निकालना है। तो अभी मैंने देखा था सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू ई, और सिग्मा इज इक्वल टू हो गया आपका कैपिटल डी माइनस डी डिवाइड बाई डी एप्सिलॉन इंटू ई। सिग्मा आपको दिया है 120 मेगा पास्कल, ठीक है, डी माइनस डी डिवाइड बाई डी इंटू 210 इंटू 10⁻3, ये आपका, तो ये 120 है। तो आप देख सकते हैं कि आपका 120 डिवाइड बाई 210 डिवाइड बाई 1000, ये हो गया 5.71 इंटू 10⁻4 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है 1200 माइनस डी डिवाइड बाई डी। ठीक है, तो 5.71 इंटू 10⁻4 इंटू डी इज इक्वल टू 1200 माइनस डी, तो प्लस 1 कर दिया, तो आपका जो डी आया है वो आएगा 1200 डिवाइड बाई 1.0000571429 तो आप निकाल सकते हैं 1200 डिवाइड बाई 1.00571429। तो आपका इंटरनल डायमीटर आया डी इक्वल टू कितना, नियर वाई है 1199.31 mm। ठीक है, तो ये पूछ रहा है also determine the least temperature to which the tire should be heated so that it can be slipped down to the wheel। इसका कम से कम कितना टेम्परेचर बढ़ाया जाए, तो इसका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट कितना है, देखो अल्फा इज इक्वल टू 11 × 10⁻⁶। ठीक है, तो अब इसकी इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल इज इक्वल टू कितनी होनी चाहिए, एल अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइड बाई एल इंटू अल्फा। अब चेंज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ कितनी हो गई इसकी, तो आप देख सकते हो ये डेल्टा एल डिवाइड बाई एल क्या है, स्ट्रेन, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू स्ट्रेन डिवाइड बाई अल्फा एस, सॉरी डेल्टा टी इज इक्वल टू, डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो निकला, एप्सिलॉन डिवाइड बाई ये, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू आपका कितना आया है सिग्मा, सिग्मा एस डिवाइड बाई ई एस कर दो, या फिर सिग्मा एस डिवाइड बाई ई एस इंटू अल्फा एस, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं 120 मेगा पास्कल 210 इंटू 10⁻³ इंटू 11 इंटू 10⁻⁶। तो आप देख सकते हैं 120 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 210 डिवाइड बाई 11,
यानी कि टेम्परेचर कितना राइज किया जाए, 51.9480 डेल्टा टी इक्वल टू लगभग में 52 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो वो उसके ऊपर फिक्स की जा सकती है। तो सिंपल है, आप इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व करके देख लें और ऐसे सॉल्व करें तो आप कर सकेंगे। ओके, थैंक यू।